Hello, dear students. Welcome to lecture number 12 of chapter matrices. Now, up to last lecture, we have studied the inverse of matrices by using adjoint method, by using elementary row transformations, and by using elementary column transformations. We have solved so many examples related to it. Now we have completed, in last lecture, we have completed question number 8 from exercise. Now, the question number 9 is find the inverse of matrix A is given 1, 1, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 4 in columns by elementary column transformations. And now to find the inverse of matrix, first of all, we have found the determinant of matrix. Determinant of A is equal to, determinant find here, 1 into 16 minus 9 is 7. Minus 3 into 4 minus 3, that is 1, and plus 3 into 3 minus 4, that is minus 1. Means it is 1 into 7 is 7, minus 3 minus 3, that is 7 minus 6 means 1, means it is not equal to 0. And when non-zero matrix, then it is said to be non-singular matrix, means we can say that A is invertible matrix, means A inverse exists. And to use the column transformation, we write here A inverse into A is equal to I. Therefore, A inverse into 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4 is equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Now, using this one to make these two places as 0, ये दो places 0 करने के लिए हमने ऑपरेशन लिए C2 changes by operation C2 minus 3C1 and C3 changes by operation C3 minus 3C1. इसको देख के यूज किया, इसको देख के, इसको 0 करना है तो C2 में से 3C1 और इसको 0 करना है तो C3 में से 3C1 सब्ट्रैक्ट करो, C2 minus 3C1 and C3 minus 3C1. तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 1 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 0, 3 minus 3 it is 0 and 4 minus 3 it is 1. Now it is right side 1 0 0 as it is first column, 0 minus 3 it is minus 3, 1 minus 0 it is 1 and 0 minus 0 it is 0. Then 0 minus 3 is minus 3, 0 minus 0 is 0 here and 1 minus 0 is 1 here. Ready? Now after making these elements as 0, we'll make this element as 1 which is already 1. बहुत सारे बोनस पॉइंट हमें यहाँ पे मिले हैं, कुछ 1 और कुछ zeros मिले हैं. अब हम इस 1 का यूज करके इसको 0 बनाते हैं, यानी C1 को चेंज करना है, C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C1 minus C2. तो A inverse into this 1 0 1, 1 minus 0 is 1. Now C2 and C3 as it is. Here it is 1 minus minus 3 means 1 plus 3 4, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0, this minus 3 1 0 and minus 3 0 1 as it is. Now सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे ये बन रहा है, इसके लिए ऑपरेशन किया, C1 changes by C1 minus C3, C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 minus C3 के बाद ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज नथिंग बट योर मैट्रिक्स. नाउ यहाँ पे क्या होगा, C1 minus C3 करने के बाद 4 minus minus 3 यानी 4 plus 3 7, minus 1 minus 0 is minus 1, 0 minus 1 is minus 1, minus 3 1 0 and minus 3 0 1. ठीक है, it becomes A inverse is equal to this matrix 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0 minus 3 0 1. Got it everybody? Okay, तो इसको नोट करो, बहुत ही इजी एग्जांपल था डायरेक्टली, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैंने लिख के निकाला था. ठीक है, आगे का एग्जांपल हम एग्जांपल नंबर 10 वो सीखते हैं. Now look at this. Find the inverse of this matrix A by using elementary column transformation. Elementary column transformation से
हमें इसको फिर इनवर्स फाइंड करना है। चलो पहले इसको नॉन सिंगुलर दिखाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 1 2 1, that is equal to 1 into bracket 2 minus 6 and plus 1 into bracket 0 minus 2, that is equal to minus 4 minus 2. Determinant of a is equal to आएगा minus 6, therefore we can say that which is not equal to 0. Hence we have a is not a singular matrix, it is not a singular, and therefore we can say that a inverse exists. And if a inverse exists, to use the column transformations, we must write a inverse into a is equal to I. Hence a inverse into the matrix A is 1 0 1 in columns, then 0 2 2, and this 1 3 1 is equal to the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. चलो स्टेप बाय स्टेप इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं मैट्रिक्स ए को। यानी यहां पे 1 है, बोनस है, उसके बाद एक 0 भी है, हमें सिर्फ इसको 0 करना है। तो पहले ऑपरेशन में हम C3 को चेंज करेंगे। C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 माइनस C1। यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए। इट बिकम्स द मैट्रिक्स this 1 0 1 as it is. Here it is 0 2 2, and it becomes 1 minus 1 0, 3 minus 0 3, and 1 minus 1 it is 0. That is nothing but equal to into, sorry, A inverse पहले लिखना है यहाँ पर, is nothing but equal to the matrix। देखिए ये एज इट इज रहेगा C1 1 0 0, C2 पे एज इट इज रहेगा 0 1 0, 0 minus 1 it is minus 1, 0 minus 0 it is 0, and 1 minus 0 it is 1. Okay, now we have to make this element as 1. For that, as here these are two zeros, we can divide it by 3 also, or now we'll take the operation to make this element as 1, then this element as 0. Okay, first of all we'll change it as C3 changes by C2 changes by of the operation 1 by 2 C2, and C3 changes by operation 1 by 3 C3। चलो सबको 1 1 करा लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यानी इजी एलिमेंट्स बना देंगे इसको। तो क्या होगा देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑपरेशन लिया है हमने, इनवर्स इनटू दिस मैट्रिक्स, ये होगा 1 0 1 0 1 1 0 1 0, that is nothing but equal to this matrix 1 0 0 0 1 by 2 0 minus 1 by 3 0 1 by 3। Got it? अब हम यहाँ पे 1 by 6 कॉमन लेते हैं इस
फ्रैक्शनल एलिमेंट्स कैंसिल करने के लिए। फ्रैक्शनल एलिमेंट्स हमें इसमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम 1/2 और 1/3 यानी 1/6 कॉमन लेना, तो टोटल मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार। A इनवर्स इनटू दिस मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 1 0 1 0, तो क्या करेंगे इज इक्वल टू आएगा 1/6 into this matrix 6 0 0 0 3 0 minus 2 0 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, C2 इंटरचेंज C3, तो यहां पे आएगा A इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 0 0 1 1 is equal to 1/6 into this matrix। हर किसी के स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, -2 0 2 0 3 0। C2 और C3 को इंटरचेंज किया है। अब देखिए इसको 0 बनाएंगे, C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 माइनस C2, यहां पे इसको 0 बनाए, तो क्या आएगा A इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 0, C3 माइनस C2 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 0, 1 minus 0 1 is equal to 1/6 into this matrix। C1 as it is 6 0 0, C2 as it is -2 0 2, and now C3 minus C2 0 plus 2 2, 3 minus 0 3, and 0 minus 2 -2, and last operation to make this as C1 changes by operation C1 minus C3, it becomes A inverse into this matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is equal to 1/6 into this matrix 6 minus 2 4, 0 minus 3 minus 3, 0 plus 2 2, and here -2 0 2 and 2 3 minus 2, तो A इनवर्स इज इक्वल टू आपको मिला, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया, मींस A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1/6 into 4 minus 2 2 minus 3 0 3 and 2 2 minus 2। चेक करेंगे आंसर को एक बार। Yes, it is 1/6 into 4 minus 2 2 minus 3 0 3 2 2 minus 2। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे जो थोड़े से डिफरेंट है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनवर्स के, और उसके पहले हम आज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके रूल्स डिटेल में सीखने वाले। Now, after studying the adjoint of matrix and inverse of matrix, before studying the miscellaneous exercise 2A, we are just discuss about the properties of adjoint and inverse of matrix। adjoint और inverse के properties हम सीखेंगे। if A is any square matrix of order n, then
n ऑर्डर का कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो याद करो पहली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज नथिंग बट इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज भी बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट या एडजॉइंट का ट्रांसपोज दोनों सेम होता है। यानी अगर ट्रांसपोज का हमें एडजॉइंट निकालना है, हम एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकाले या ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाले, दोनों का मतलब एक ही है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए is nothing but equal to determinant of a raised to n minus 1, where n is the order of matrix. Determinant of adjoint of a is nothing but determinant of a raised to n minus 1. यानी a अगर 2 by 2 ऑर्डर का है, यानी a की ऑर्डर अगर 2 by 2 है, तो ये 2 minus 1 यानी 1, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोथ बिकम सेम। अब ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूजफुल कैसे रहेगी, समझो आपको दिया है मैट्रिक्स ए गिवन है और बताया है कि इट इज 1 2 3 4 1 9 5 6 थ्रू, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब ऐसी प्रॉपर्टी आपको अगर पता नहीं है तो आप क्या करते हो, इसका एडजॉइंट निकालने में लग जाते हो, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस 1। जिसको प्रॉपर्टी पता नहीं है वो डेफिनेटली क्या करेगा, इसका एडजॉइंट फाइंड करेगा और फिर एडजॉइंट फाइंड करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेगा। लेकिन जिसको प्रॉपर्टी पता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसी का डिटर्मिनेंट निकालेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है, और अब n की वैल्यू इसकी 3 by 3 ऑर्डर है तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो हम लिखेंगे यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। अब फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालने का और उसका स्क्वायर करने का इजी हो जाता है। सुना के आपने मैंने क्या कहा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का एडजॉइंट अगर हमें निकालना है तो दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n minus 2 into मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू n minus 2 into मैट्रिक्स ए, ठीक है। यानी 2 by 2 का अगर मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। एडजॉइंट ऑफ a इज एडजॉइंट इटसेल्फ, इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। लेकिन 3 by 3 का अगर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a into a, ऐसा उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो याद रखो ये प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू n minus 2 into a। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ a and b are square matrices of same order, then adjoint of a into b is nothing but equal to adjoint of b into adjoint of a। प्रोडक्ट होगा adjoint of ab, that is nothing but adjoint of b into adjoint of a।
एडजॉइंट ऑफ ए बी सी अगर किया तो इट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ सी into adjoint of B into adjoint of C. Sorry, adjoint of E. ये रिवर्स होगा. Adjoint of A into B into C करना है तो if C is another matrix तो it is nothing but adjoint of C into adjoint of B into adjoint of A. इसमें और एक प्रॉपर्टी याद रखना है फिर कि adjoint of A raised to n is nothing but equal to adjoint of A whole raised to n. A स्क्वायर का एडजॉइंट ऑफ निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A स्क्वायर. तो आप A स्क्वायर निकाल के उसका एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के उसका स्क्वायर करो, दोनों एक ही मतलब है, उसमें कोई चेंज नहीं. समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, तो ये एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से याद रखने हैं. जैसे और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, if k is any scalar then adjoint of k into A is nothing but equal to, 1 minute, I am thinking about it. It is nothing but equal to k raised to n into adjoint of A. k raised to n into adjoint of A. अब देखिए ये कैसा होता है. सपोज A मैट्रिक्स है, सॉरी k raised to n minus 1 आएगा. A मैट्रिक्स है 2 by 2 का, यानी 2 3 4 1. मैट्रिक्स A इज सपोज 2 3 4 1. इसका जब एडजॉइंट निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ E, एडजॉइंट ऑफ E निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है पता है हमें? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, इनको इंटरचेंज करो और चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करो, ये एडजॉइंट मिलेगा उसका. समझो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a किया तो क्या हो जाता है? 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 8 2. तो एडजॉइंट ऑफ k इंटू a क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ 2a, ये भी इंटरचेंज हो गया, इधर 2 4 6 8 -3 -8, सॉरी -6 -8, इनके साइन चेंज किया. समझ में आया? यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, k से मल्टीप्लाई, यानी n की ऑर्डर जब 2 है, 2 - 1, तो ये k इंटू एडजॉइंट ऑफ e आएगा. लेकिन जब मैट्रिक्स A 3 by 3 का है तो ये 3 - 1 2. ठीक है, यानी यहां पे k स्क्वायर आएगा. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ A इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3, then adjoint of 2a, adjoint of 2a is equal to 2 raised to 3 minus 1 into adjoint of a, that is 2 square 4 into
adjoint of E. Adjoint of 5A is nothing but 5 raised to 3 minus 1 into adjoint of E. 3 minus 1 means 2 or 5 square means it is 25 into adjoint of E. समझे क्या? तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. पहली प्रॉपर्टी, adjoint of A transpose is nothing but adjoint of A whole transpose. Determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to n minus 1. Adjoint of A is nothing but equal to determinant of A raised to n minus 2 into A. If A and B are any two square matrices, then adjoint of A into B is adjoint of B into adjoint of A. Adjoint of A into B into C is adjoint of C into adjoint of B into adjoint of A. Adjoint of A raised to n is always adjoint of A whole raised to n. If K is any scalar, then adjoint of K into A is K raised to n minus 1 into adjoint of A. These properties we have to remember about the as a properties of adjoint of matrix. अब कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स के भी है, कुछ दोनों के साथ भी है. अब इसमें और एक याद रखो 6 नंबर पॉइंट, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स. किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स दोनों सेम होता है. ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, दैट इज नथिंग बट सेम. ए इंटू बी होल इनवर्स is nothing but equal to B inverse into A inverse if A and B are any two square matrices which are non-singular matrices. फिर उसके बाद 8th नंबर याद रखना है, A B C whole inverse is nothing but equal to C inverse into B inverse into A inverse. ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखने हैं इनवर्स के प्रॉपर्टीज. Determinant of A inverse is nothing but equal to 1 upon determinant of A. Determinant of A inverse is always equal to 1 upon determinant of A. 10 number, adjoint of A inverse is nothing but equal to adjoint of A whole inverse. adjoint का इनवर्स निकालो या इनवर्स का adjoint निकालो, दोनों सेम ही है, एक ही है. 11 नंबर, A इंटू adjoint of A, ये प्रॉपर्टी पहले मैं बता चुका हूं, is nothing but equal to adjoint of A into A is nothing but equal to determinant of A into I. Determinant of A into I. 12 number, remember that A raised to n whole inverse is nothing but equal to A inverse raised to n. ठीक है. And now is remember these as a properties of inverse of matrix and adjoint of matrix. इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज दिए हैं इसको अच्छे से नोट करो. ये आपको बोर्ड एग्जाम्पल्स वैसे ही सीईटी और जेडब्ल्यू में ज़्यादा यूजफुल होते हैं. सीईटी के एग्जाम्स और जेडब्ल्यू के एग्जाम्स में ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए. एक एक प्रॉपर्टी लिख के उस पर सोचिए, ठीक है, कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं. ये सभी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है. ये इस पे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं.
Now, one of the important example from miscellaneous exercise A, find the inverse of matrix cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1 by using elementary row transformations. आपको प्रोसीजर वही यूज करनी है, सिर्फ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स है. तो पहले हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताएंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. cos theta into bracket cos theta minus 0 is cos theta and plus sin theta into bracket sin theta minus 0 is sin theta, means we have it is cos square theta plus sin square theta, and therefore we can say that determinant of A is equal to 1, because we know that for any theta cos square theta plus sin square theta is always equal to 1. Hence we can say that determinant of A is not equal to 0. Therefore A is a non-singular matrix, and if A is a non-singular matrix, then we can say that A inverse exists, and when A inverse exists we can say that A into A inverse is equal to I, which we have to write for the inverse of matrix by using row transformations. A into A inverse is equal to I. अब A matrix आपको दिया है, therefore this matrix cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0 or 0, 0, 1 into this A inverse is equal to this matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. अब देखिए, आपको बनाना है इस एलिमेंट को 1. फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी cos square theta plus sin square theta is equal to 1. तो इसको cos square theta plus sin square theta बनाने के लिए हम R1 में चेंज करेंगे. R1 changes by operation cos theta R1 plus sin theta R2, यानी R1 को cos theta से मल्टीप्लाई करो, R2 को sin theta से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करो. तो हमें मैट्रिक्स कैसे मिलेगा? देखिए, दिस मैट्रिक्स बिकम्स cos theta R1 means cos square theta plus sin theta R2 means sin theta into sin theta is sin square theta. cos theta R1 यानी ये आएगा माइनस sin theta cos theta and plus sin theta R2 means plus sin theta cos theta. अब ये दोनों एलिमेंट 0 प्लस 0 है, तो यहां पे आएगा 0. R2 एज इट इज रहेगा sin थीटा cos थीटा 0 और R3 0, 0, 1 एज इट इज इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. इसमें क्या होगा देखिए, अब cos थीटा R1 यानी इसको 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा R2 मींस ये 0, और यहां पे आएगा 0 प्लस sin थीटा R2 मींस यहां पे आएगा sin थीटा. ये 0, 0 है इसलिए यहां पे 0 रहेगा. ये 0, 1, 0 एज इट इज, 0, 0, 1 एज इट इज. समझ में आई ये स्टेप? अब देखिए, इसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 होता है. sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा ये 0 होगा. ये 0 यहां पे आएगा sin थीटा, ये cos थीटा 0, 0, 0, 1 into this matrix A inverse is equal to this matrix cos theta sin theta 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. अब देखिए, हमें इसको इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी R2 को चेंज करना है. R2 चेंजेस बाय
R2 माइनस साइन थीटा R1, ठीक है, R2 माइनस साइन थीटा R1। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे ये मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 फर्स्ट रो एज इट इज, फिर R2 मीन्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू R1 यानी 1, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इट बिकम 0। यहां पे ये रहेगा cos थीटा एंड नाउ इट बिकम्स 0, here it is 0 0 1 into A inverse is equal to this matrix। अब क्या आएगा, देखिए ये R1 एज इट इज रहेगा cos थीटा sin थीटा 0। अब 0 माइनस साइन थीटा इंटू R1 यानी ये आएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे आएगा 0, ये आएगा 0 0 1। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैट्रिक्स बन गया। यहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको एक स्टेप एज इट इज लिखेंगे 1 0 0 0 cos थीटा 0 0 0 1 into matrix A inverse is equal to this matrix cos theta sin theta 0। अब देखिए ये होगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स इट इज cos स्क्वायर थीटा, ये 0 और 0 0 1। समझ में आ रहा है? अब हमें इसको 1 बनाना है, इसलिए हम R2 को डिवाइड करते हैं cos थीटा से। R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन 1 बाय cos थीटा R2। R2 के हर एक एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड करो तो आपको ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखिए यहां पर इट बिकम्स मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into this matrix A inverse is equal to matrix R1 as it is रहेगी cos थीटा sin थीटा 0, ये माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 और ये आएगा 0 0 1। इसको cos थीटा से डिवाइड किया तो सिर्फ माइनस साइन थीटा रहा, इसको cos थीटा से डिवाइड किया तो सिर्फ cos थीटा, 0 को cos थीटा से डिवाइड किया तो 0, बाकी एज इट इज। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स आ गया आपका cos थीटा sin थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। दिस इज योर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया आपको? तो इसको लिख लो फटाफट। इसका एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट मैं अब आपको बताऊंगा। अब देखिए ये आपका हो गया होगा ऐसा कंसिडर करता हूं, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स लेके पीछे लेके वो सब लिख के निकालो। अब देखिए अगर मैं डिनोट करता हूं, अब ये 2x2 का मैट्रिक्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग अबाउट दिस मैट्रिक्स, if A alpha is equal to this matrix cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, ये माइनस साइन यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, आप कहीं पर भी उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ चीजें याद रखना है। देन पहली बात याद रखना कि ए अल्फा का जो इनवर्स होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू
ए ऑफ माइनस अल्फा। ए ऑफ माइनस अल्फा यानी ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा। आपको पता है साइन ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, मींस इट इज साइन अल्फा। साइन ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, which can be written as a alpha transpose also। यानी a अल्फा का इसका इनवर्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और इसको हम a अल्फा का इनवर्स इज इक्वल टू a ऑफ माइनस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन इसमें हमने जो 11th में स्टडी की थी कि a अल्फा इंटू a बीटा, it is always equal to a beta into a alpha and both are nothing but a alpha plus beta। अब a अल्फा अगर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा है तो a बीटा क्या होगा, cos बीटा माइनस साइन बीटा cos बीटा, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, दैट इज a ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी रिप्लेस एवरी अल्फा हियर इन दिस मैट्रिक्स बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका तीसरी एक चीज याद रखना कि a अल्फा रेज टू n ये होता है a ऑफ n अल्फा, यानी इसका रेज टू n अगर करते हैं, स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो ये cos ऑफ n अल्फा माइनस साइन ऑफ n अल्फा साइन ऑफ n अल्फा एंड cos ऑफ n अल्फा ऐसा रहेगा। तो ये वाला शॉर्टकट आपको याद रखना है स्पेशली फॉर दिस मैट्रिक्स। अब a अल्फा बोल के इन्होंने ये मैट्रिक्स दिया तो भी चलता है, ये दिया तो भी चलेगा। अगर यहां पे ये आता है तो यहां पे ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दीज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर एज वेल एज ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स भी है और ट्रांसपोज भी है। समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हमने ये जानबूझकर आज क्वेश्चन मिसलेनियस का 8th वाला क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लिखो इसको फटाफट। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।